Hello students, good afternoon. Today we are starting a new fresh chapter, Forests and Wildlife Resources. Forests and Wildlife Resources. What is meant by resources? Resources means wealth. And there are two types of resources, natural resources and man-made resources. And here we study about forests and wildlife resources. Okay, forest के बारे में और wildlife के बारे में ये chapter में we will explain. Are you ready? Okay. The existence, progress and development of man is depend on resources. The development of man is depend on resources. मैन का सब डेवलपमेंट किससे डिपेंड करता है? दैट मीन्स रिसोर्सेस का डिपेंड है. दैट मीन्स देयर एक्सिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. मैन का जो भी डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस हो और एक्सिस्टेंस हो, ये सब किससे डिपेंड है? रिसोर्सेस का डिपेंड है. एंड वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स बाय गेटिंग दम फ्रॉम नेचर सिंस एंशिएंट और मीन्स अर्ली टाइम्स. अर्ली टाइम्स से and from ancient times we obtain these things or means satisfy our needs from the nature. Nature से हम हमारा सब needs or means basic needs जैसा food, shelter etc. are our basic needs. ये basic needs हम कहाँ से fulfill करते हैं? From nature. And when the forests are considered to be very important resources. Forests is one of the major or means very important resources. And a general meaning of forest. What's the meaning of forest? Forest क्या होता है? आप लोग forest के मतलब क्या लेते हैं? That means थोड़ा बहुत trees or means is the accumulation of trees. Accumulation of trees. Accumulation of trees. Then shrubs or heaps of grass or heaps of grass. In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. Natural vegetation. What is meant by natural vegetation? The vegetation which is grown by itself or means nature खुद उसको care करता है. और only the vegetation is included which can be raised naturally. It can be raised naturally without the help of human beings or man. Man का बिना help से जो nature अपने आप से जो vegetation को grow कराते हैं, and that is called natural vegetation. And this natural vegetation is otherwise called virgin vegetation. Which is virgin vegetation. That is called virgin vegetation. The vegetation which is obtained from the nature or means which is grown by nature. That only the vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. Without the help of man. And such vegetation is called virgin vegetation. And now such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarban and remote areas of Thar Desert. ये सब जगह से हमको वर्जिन वेजिटेशन मिलता है. दैट मीन्स द रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट, हिमालयस एंड सुंदरबन. क्योंकि ये सब बहुत अच्छा फॉरेस्ट है और हिमालयस में है, सुंदरबन में ये सब गुड फॉरेस्ट है. ये फॉरेस्ट में सो मेनी वेजिटेशंस आर अवेलेबल एंड दैट इज grown by the nature or means which is obtained from the nature, and that is why it is called the virgin vegetation. Okay. And from where it is obtained? From the deserts of Thar, and it is obtained from Himalayas and Sundarban. Okay. Now the forests can be classified into different types. Classification of forests. Forest classification is made according to different criteria. You have studied the classification of forests
on the basis of climate in standard 9. आप लोग स्टैंडर्ड 9 में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में गया साल आपने पढ़ चुका था. एंड हियर वी विल नो दैट 3 types of forests on the basis of administration, ownership and management. So here the administration or means forests are on the basis of administration, ownership and management. इसके अनुसार से this can be classified into different types. Here we can see that the classification, that first one, types of forests according to administration. According to administration कैसा है? First one, reserved forests, and second one, protected forests, and the third one is unclassified forests. Unclassified forests. Okay, understood? Now we can see what is reserved forests. Such forests are under the control of the government directly, and here there is a restriction on lumbering, collecting and of food or for pasturing. जैसा फूड कलेक्ट करने का, लंबरिंग और मीन्स पास्टरिंग करना, ये सब के लिए जब हम फॉरेस्ट में से मीन्स फूड कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स सच कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ये सब कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब काम कर सकते हैं. गवर्नमेंट का परमिशन बिना ये सब मीन्स वुड कट करने का या पास्टरिंग करने का, ये सब के लिए अधिकार नहीं मिलता. सो सच फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का ट्रीज को काटने का ये सब अधिकार किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है. सच फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स. ओके, रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स है. अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर, दिस फॉरेस्ट्स आर लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन and means local people are permitted to collect the wood to graze their animals without causing any harm to the trees. trees को harm नहीं करना चाहिए, ऐसे local people को परमिशन मिल जाता है टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस देयर एनिमल्स. एनिमल्स को ग्रेस करना, एनिमल्स को खिलाना और वुड कलेक्ट करना, जो फॉर कोई भी पर्पस के लिए उनका जैसा हाउस होल्ड काम के लिए, वो सब के लिए वुड कलेक्ट करने के लिए परमिशन मिल जाता है फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स. सो दिस फॉरेस्ट्स आर लुक आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन उसको दैट मीन्स लोकल पीपल आर अलाउड और परमिटेड टू get wood and collect the wood and graze their animals. Okay, and such forests are called protected forests. Then third one is that classified forests, unclassified forests. These forests are still not classified, और इसका मतलब there is no restriction on trees felling or animal grazing. उधर का कोई परमिशन ही नहीं है. जैसा भी कोई भी किसी को भी उधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फेलिंग, ऑन ट्री फेलिंग और दी एनिमल ग्रेसिंग. उधर एनिमल को ग्रेस करना और ट्रीज को निकालना, वो सभी उसको कोई किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. ऐसे भी फॉरेस्ट में से कोई झाड़ को काटना वो सब तो मना है, फिर भी एक फॉरेस्ट में से अभी इन केस आपको कोई जरूरत का काम के लिए आपने उधर से वुड लिया तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है, क्योंकि ऐसा फॉरेस्ट है क्या है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट से. अंडरस्टूड? एंड दैट्स नेक्स्ट the classification of forests according to ownership, administration and management. इसके अनुसार से कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? The classification of forests according to ownership. अभी तो हमने जो बोला एडमिनिस्ट्रेशन है, बट द अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट तीनों साथ में आ गया. दैट मीन्स ये एक दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है. दो मेनली 2 क्लासिफिकेशन था, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देख लिया 3, एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन ऐसा है स्टेट फॉरेस्ट, देन कम्युनिटी और कम्युनल फॉरेस्ट, देन थर्ड वन इज प्राइवेट फॉरेस्ट. सो व्हाट इज मीन बाय द स्टेट फॉरेस्ट? स्टेट फॉरेस्ट, सो central or state government or state governments control such forests. Central government or the state government controls this. Central or state government controls this state forest. State forest को state government का या central government का control होता है. Okay, and that
then most of forests of the country fall under this category. Most of the forests, almost all forests are under this control. That means state forest में है. और क्योंकि वो सब कंट्रोल किसका होता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का और द स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में होगा. फॉरेस्ट को उसका वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं. एंड देन कम्युनल और द कम्युनिटी फॉरेस्ट. कम्युनल फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट में लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आपको मालूम है ग्राम पंचायत और दी म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसमें से कोई भी उनका कंट्रोल में होगा कम्युनल फॉरेस्ट में और कम्युनिटी फॉरेस्ट में. एंड डिस्ट्रिक्ट दिस आर कंट्रोल्ड ओवर सच फॉरेस्ट. ये एक किसका कंट्रोल में है, वो भी गवर्नमेंट है बट लोकल सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का अंडर में होगा. और इसलिए ये इसको क्या बुलाते हैं, कम्युनल और दी कम्युनिटी फॉरेस्ट. अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट प्राइवेट फॉरेस्ट. प्राइवेट फॉरेस्ट मीन्स सच फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल का होगा, उसका मतलब एक आदमी का होगा, क्या एक फैमिली का होगा. जैसा एक प्राइवेट एक जन का, और उसका मतलब एक पीपल का, और मीन्स एक फैमिली का, एक इंडिविजुअल का होगा. एंड सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओडिशा, है ना. और मोस्टली ये ओडिशा में देख सकते हैं और मेघालय में, है ना. मेघालय, देन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. पंजाब हिमाचल प्रदेश में ऐसा फॉरेस्ट आपको देख सकते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट जो अपना खुद का होगा. ऐसा फॉरेस्ट भी होता है, वो प्राइवेट फॉरेस्ट बोलते हैं. जैसा उनके ये फॉरेस्ट में सबको कोई अधिकार नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट और मीन्स एक इंडिविजुअल का लीडरशिप में और उसका अंडर में होगा. एंड सम ऑफ दिस फॉरेस्ट्स आर इन मीन्स haphazard condition or some of them are totally barren. ऐसा फॉरेस्ट ऐसा अच्छा कंडीशन, गुड कंडीशन में नहीं होगा कभी कभी, एंड टोटली बैरन होगा, उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा. और ऐसा भी बैरन भी हो सकता है ऐसा प्राइवेट फॉरेस्ट्स. ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्स. खैर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. ये क्लासिफिकेशन को हम और एक क्लासिफिकेशन के टेबल बना के भी आपको ये क्लासिफिकेशन कर सकता है, वो आपको दिखाएंगे जैसा एक क्लासिफिकेशन होता है. एंड लिसन हियर, टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स द अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. सो one is according to administration and the other is according to ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. एक दो क्लासिफिकेशन के बाद, एंड दिस अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 3. एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स. उसके बारे में अभी हमने एक्सप्लेन किया. एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ in the next class, I think some students will attend the class today, and the students those who are not attended the class can see this video. Okay, and all of you take care, and if possible all of you attend the lectures in the class. Okay students, bye.